Good morning students, welcome back to our next class of class 6th English, chapter number 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. You all remember we read in our last part about Kalpana Chawla. Kalpana Chawla is an inspiration for all the human beings on earth, especially those who are in India, because she was an Indian born American astronaut. Alright, American astronaut we are saying because she went to America for her higher studies in aeronautical engineering, and there she settled and got the citizenship of USA. You remember we have done some word meanings. Naturalized US citizen, okay, the one who is not born in particular place but has the citizenship now. He or she is known as naturalized US citizen. So she was a naturalized US citizen in America. ठीक है? Now we read about who was Kalpana Chawla, and we all know that she was an astronaut. She was an inspiration for all the Indians because she was born from a small village of Haryana and she went to the heights of the space. Alright, so it's good to remember her always, get inspired every time whenever we are in tough conditions, and work hard and get success. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था. उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था और वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चली गई थी. वहाँ उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री करी और वहीं उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने की ठान ली, और वो बनी भी, और वो एक स्पेसक्राफ्ट में बैठ के स्पेस में भी गई, तो उन्होंने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ. आप लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए बेटा. ओके, यू ऑल शुड ऑल्सो get inspiration from Kalpana Chawla. Alright, so she sat in a Columbia spacecraft, जो कि एक अंतरिक्ष यान है, उसमें बैठ के वो स्पेस सेंटर जो है जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं वहाँ पे वो पहुँची थी. बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस आ रही थी तो उनका जो कोलंबिया प्लेन जो स्पेसक्राफ्ट था कोलंबिया, वो रास्ते में ही ब्रेक ऑफ हो गया. ठीक है, इट ब्रोक अपार्ट इनटू पीसेस. ठीक है, कुछ उसमें टेक्निकल फेलियर था या वॉट एवर द रीज़न वॉज, आई एम नॉट श्योर, बट कल्पना चावला अलॉन्ग विद हर 6 क्रू मेंबर्स, दे ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स. सब के सब उसी समय ख़त्म हो गए. ठीक है, सो वी वर रीडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वी ऑल्सो रेड अबाउट द अमेरिकन इंग्लिश एंड द ब्रिटिश इंग्लिश difference. There were few words, how they are pronounced, how they are spelled in American English and how they are spelled in British English. Alright, so we did airplane, we did program, and we also did the spellings. जो भी minute उसमें difference है वो हमने किया था. We also discussed some word meanings also. Alright, so before reading this part, you better read the first part, and now let's read the today's part. Come along, we'll start with the chapter. So there are meanings, we will discuss them first. First one is unprecedented. Alright, how will you pronounce it? Unprecedented. Never having happened or existed before. Unprecedented का मतलब अकल्पनीय, ऐसी घटना कभी आज तक कहीं घटी नहीं, कभी हुई ही नहीं. ठीक है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन या ऐसी घटना को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड. ओके, सेकेंड वन इज एस्ट्रोनॉट. यू ऑल नो व्हाट एन एस्ट्रोनॉट इज. यस और नो? एस्ट्रोनॉट क्या होता है बेटा? एस्ट्रोनॉट जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के और स्पेस में जाते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. अ पर्सन हु ट्रेवल्स in a spacecraft. Okay, those who travel in spacecraft are called astronauts. Flames. Flames आपको पता है आग की जो लपटें होती हैं, they are called flames. So flames means an area of bright burning gas that comes from something that is on fire. ठीक है, लपटें कह सकते हो आप आग की, उसको बोलते हैं flames. Streaked. What is streaked?
हैविंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की लाइन्स, या धारियों वाला आप कह सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. नाउ व्हाट इज दिस? वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर न्यूज़, ठीक है. ये एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ एडिट हुई थी. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये न्यूज़पेपर में आई थी अमेरिका में जब ये ट्रेजेडी हुई थी. ओके, व्हेन द कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट broke apart into pieces and the tragedy happened. After that there was a news in the newspaper and we are reading that first, okay, before starting the chapter. Now the heading of the newspaper news was tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flames. ट्रेजेडी हुई. क्या हुआ बेटा? ट्रेजेडी हुई. कहाँ पे? स्पेस में. स्पेस आपको पता है अंतरिक्ष. ट्रेजेडी मीन्स कोई ऐसी घटना जो किसी के डेथ पे आके रुकती हो, ठीक है. ट्रेजेडी मीन्स ऐसी बुरी घटना जिसमें किसी के हम डेथ की न्यूज सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेडी, दुखद घटना. ओके, ट्रेजेडी कहाँ हुई? स्पेस में हुई. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. और जो स्पेस शटल कोलंबिया है, यूएसए का जो स्पेसक्राफ्ट था जिसमें बैठ के कल्पना चावला और उसके 6 क्रू मेंबर्स गए थे स्पेस में, वो क्या हुआ? ब्रेक इनटू फ्लेम्स. वो टूट गया और वो आग में या लपटों में ब्रेक हो गया, ठीक है बेटा. ये न्यूज आई थी जब उनका वो क्रैश हुआ था स्पेसक्राफ्ट. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. Okay, now this is a very sad news for all of us. ये बोल रहा है बेटा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी हुई है. अनप्रेसिडेंटेड मतलब अकल्पनीय या जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी एक दुखद घटना हुई है. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस का जो स्पेस शटल था, शटल आई टोल्ड यू, एक विमान जो एक जगह पे जाके और वापस आता है पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, ठीक है. वो वहीं हमेशा के लिए दूसरी जगह पे नहीं रहता, वो जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, दैट इज कॉल्ड शटल. ओके, तो यूएसए का स्पेस शटल था जो कि स्पेस में जाता है और वापस आता है, उसका नाम था कोलंबिया. उस कोलंबिया अंतरिक्ष यान में जिसने कैरी कर रखा था किसको? कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इंडिया में जन्मी और अमेरिका में पढ़ी हुई या अमेरिका के सिटीजन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट मीन्स वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री. कल्पना चावला and 6 others. How many people were with Kalpana Chawla in that Columbia spacecraft? 6 more. So total how many crew members were there along with Kalpana Chawla? They were 7 बेटा, ठीक है. कल्पना चावला समेत 7 लोग थे टोटल, ठीक है. और कल्पना चावला के साथ कितने थे? 6 others. तो कह रहा है कि कोलंबिया यान जो था, कोलंबिया स्पेस शटल जो था, वो जब कल्पना चावला और उसके साथ 6 और जो क्रू मेंबर्स है उनको ला रहा था, उस समय while they were coming back to the earth, at that time it broke apart in flames. उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जल गया, ठीक है. As it streaked over Texas. अब टेक्सास क्या है बेटा? This is a city in America. अमेरिका में एक ये सिटी है. इसके ऊपर से जब ये कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था, स्क्रीक्ड ओवर मीन्स उसके ऊपर से गुजर रहा था, उस टाइम टेक्सास के ऊपर से गुजरते टाइम इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड इट ब्रोक अपार्ट टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे. और वो अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ पहुंचते हुए टूट गया था, आग लग गई थी उसमें. और वो कौन सा दिन था? इट वॉज सैटरडे 1st February, Saturday 1st February 2003. Always remember this date बेटा, ठीक है. 1st February 2003. इस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहे थे. Killing all 7 on board. सब के सब
7 जने जितने भी थे ऑन बोर्ड मीन्स जो उस स्पेस शटल में थे, ठीक है, वो सब के सब खत्म हो गए बेटा. इट इज सो सैड टू हियर दिस. यस, while I am reading all this I am getting goosebumps, you know. कितना मतलब दर्दनाक हादसा था, अपन सोच भी नहीं सकते. ओके, द शटल lost contact with NASA at about 9 a.m. that is 19.30 hours as it came in for landing. Now this is the time where the space shuttle lost its contact with NASA. NASA क्या है बेटा? नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जहां से वो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं स्पेस में जाने के लिए. दैट प्लेस इज नासा इन अमेरिका. तो नासा में क्या हुआ बेटा? वहां पे वो कॉन्टैक्ट उसका छूट गया. कोलंबिया जो स्पेसक्राफ्ट था, इट लॉस्ट इट्स कॉन्टैक्ट विद द नासा सेंटर. इट वाज फ्लाइंग at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 km/h. This was the speed. ये तो स्पीड थी, इस स्पीड से वो स्पेस शटल आ रहा था वापस. and 200,000 feet is the height or the altitude at which it was flying. When ground control lost contact, जिस समय उसका ग्राउंड में जहां से कंट्रोल होता है सेंटर से, वहां जब उसका कांटेक्ट छूटा, उस समय वो इतनी ऊंचाई पे था. ऑलराइट, control lost contact with the space shuttle. Columbia has lifted off on 16th January. Now Columbia किस दिन स्पेस में गया था? Lifted off, you know, I told you two meanings, lift off and take off in our previous part. Lift off means to lift straight from the ground. जैसे हम लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं, है ना, तो वो लिफ्ट ऊपर ट्रैवल करती है ना, ऊपर चलती है ना, ऐसे ही लिफ्ट ऑफ का मतलब कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो डायरेक्ट जमीन से ऊपर उठता है. और टेक ऑफ बताया था आपको, जमीन से वो थोड़ी देर उसके साथ साथ दौड़ के देन इट टेक्स अ फ्लाइट. उसको वो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि टेक ऑफ करते हैं. सो कोलंबिया जो स्पेस शटल है वो लिफ्टेड ऑफ हुआ था, वो उसने उड़ान भरी थी किस दिन? 16 जनवरी, 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी 2003 from the Kennedy Space Center. Now what was the name of the space center from which it was launched? It was Kennedy Space Center. It's very famous name, you must have heard it often, and it is in Florida. Okay, Florida is a place in America where the Kennedy Space Center is, and from here the Columbia spacecraft took a flight. Okay, now here this is the picture of the spacecraft. Can you see? It's ready to move. It's vertical in shape, right? ये बिल्कुल ऊपर है, ऊपर की तरफ. So it will take a lift off in this way. ठीक है? So this was the spacecraft Columbia which we are talking about. Let's see the meanings. Altitude, I told you, height from the sea level. Height of something above sea level. समुद्री लेवल से या समुद्र का जो निशान होता है उसके ऊपर जितनी भी हाइट है, that is called altitude. ऑर्बिट, व्हाट एन ऑर्बिट इज. आपको पता है हमारी पृथ्वी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व और रोटेट करती है. डू यू ऑल नो दैट? यस, आई नो, एवरीवन नोज दैट. आवर अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स ऑन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर हम पूरा राउंड लगा के घूमते रहते हैं, ठीक है. इट्स अ सर्कुलर पाथ, ठीक है. सो वी विल रीड व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट इज नाउ. ऑर्बिट मीन्स अ कर्व्ड पाथ टेकन बाय अ प्लैनेट और अनदर एज इट मूव्स अराउंड अनदर प्लैनेट, स्टार्स, मून्स एटसेट्रा. ठीक है. ऑर्बिट एक ऐसा गोल कर्व्ड पाथ होता है जिसपे कोई भी प्लैनेट या मून या स्टार्स चलते रहते हैं, ठीक है. सो इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days. हु स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days? ऑर्बिट मतलब अपनी ही
कक्षा में, दैट इज कॉल्ड कक्षा, ओके, इन हिंदी। ऑर्बिट क्या है? वो रास्ता जिस पे उस स्पेसक्राफ्ट को चलना है। कितने दिन रुके थे? फॉर 16 डेज, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट बेटा, 16 जनवरी 2003 को वो स्पेस में गए थे, और जब वो वापस लौट रहे थे तो ऐड 16 डेज इन इट, 16 डेज इसमें ऐड करो तो कौन सी डेट आ जाएगी? 1 फरवरी। और 1 फरवरी 2003 को वो ट्रेजेडी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, ओके। So it was 16 January 2003 when the spacecraft was launched. They stayed in the orbit for 16 days, and finally on 1st February 2003 the tragedy happened. And the 7-member crew, it was a 7-member crew, we know. Crew means a group of people who are working on a spacecraft or a ship or airplane, anything. Crew means all the people who work on a ship, aircraft, etc. ठीक है? So and the 7-member crew conducted 80 experiments. कितने experiments उन्होंने किए उन 16 days में बेटा? 80 experiments उन्होंने किए थे, ठीक है। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हो सकता है वहाँ की एयर को लेके, वहाँ की किसी भी चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आई एम नॉट श्योर, बट दे डिड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन ओनली merely 16 days. Before it began its downward journey, जब वो नीचे आने लगा था उससे पहले पहले उसने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर लिए थे, which ended in tragedy. और वो जो उसकी डाउनवर्ड जर्नी थी, when it was returning back towards the earth, then the tragedy happened. Space means the area which surrounds the planet अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो स्पेस क्या होता है बेटा? हमारे ऊपर जो हवा है या एयर की जो लेयर है वो नहीं, ठीक है, हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है, स्पेस इज बियॉन्ड दैट, ओके। स्पेस उससे भी बाहर आगे होती है, ठीक है। स्पेस अपने अर्थ की जो एयर की जो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर, उसके भी आगे का जो भी एरिया है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। And it has number of stars, it has number of planets, it has number of satellites and all sorts of things, ठीक है। Shuttle means, shuttle I told you, a plane, bus or train that travels regularly between two places, ठीक है, दो जगह पे regular intervals पे आती और जाती है। It doesn't work as if it's a rocket. Rocket को हम launch कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो वापस लौट के नहीं आता। Shuttle क्या होती है? वापस लौट आती है, दैट इज कॉल्ड अ शटल। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था, द स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया वॉज हैविंग दिस 28th स्पेस फ्लाइट। उसकी ये 28वीं अंतरिक्ष यात्रा थी। तो क्या था बेटा? आपको पता है वो एक शटल था। कोलंबिया एक अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में ले जाके वहां पे जो स्पेस सेंटर होता है वहां पे यात्रियों को छोड़ के वापस आ जाता है कि नहीं? तो उसकी वो 28th यात्रा थी, ठीक है, किसकी? कोलंबिया की। स्पेस उसकी फ्लाइट थी 28th, और आपको पता है वो बहुत सी फ्लाइट्स के लिए बना था, मोर ओवर आई थिंक 100 फ्लाइट्स और वॉट, ठीक है, 100 फ्लाइट्स के लगभग की उसकी कैपेसिटी थी कि वो इतना तो कम से कम करेगा ही। बट हु न्यू दैट ऑन हिज 28th फ्लाइट ओनली द ट्रेजेडी विल हैपन, एंड द शटल वाज said to be good for 100 फ्लाइट्स। और ये जो स्पेस शटल था ये कम से कम 100 फ्लाइट्स के लिए अच्छा बताया था इसको, कि कम से कम 100 फ्लाइट्स के लिए तो ये तैयार है। इतना इसको मजबूत बनाया है, इतनी इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है कि ये 100 फ्लाइट्स तो कम से कम कंप्लीट करेगा ही करेगा। ऑल राइट, पर ऐसा हुआ नहीं। हाफ ऑफ द फ्लाइट्स वर ऑल्सो नॉट डन। 28th फ्लाइट में ही गड़बड़ हो गई बेटा। फ्रंटियर्स होते हैं जो दो देशों के बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा फ्रंटियर्स। द लाइन वेयर वन कंट्री joins another, or you can say border, ठीक है।
हमारा बॉर्डर, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, फिर और किसी कंट्री का बॉर्डर, तो जो बाउंड्री लाइन होती है दैट इज कॉल्ड अ फ्रंटियर. ठीक है. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड. अब कल्पना चावला जो थी वो कहती थी कि उन्होंने कभी भी कोई सपना नहीं लिया, उन्होंने कभी कोई सपना लिया ही नहीं. नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर. ओके, द न्यूज इज डन. न्यूज रिपोर्ट जो हम पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर की कटिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर डूइंग द चैप्टर नाउ. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड. कल्पना चावला ने बोला कि मैंने कभी भी कोई सपना नहीं देखा. एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बचपन में जब वो सपने देखती थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने अर्थ की सीमा पार करके और स्पेस में कभी भी ट्रैवल करेगी. ठीक है, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं. ऑलराइट. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड engineering college after she graduated from Tagore School. Now she is happy. She is happy because she is saying कि मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब वो पैदा हुई थी और पढ़ने के लिए कॉलेज जाने लगी थी, उस समय बेटा इतना अच्छा माहौल नहीं था कि गर्ल्स को कॉलेज भेजा जाए. बट स्टिल हर पेरेंट्स बीइंग इन अ विलेज दे सेंट हर टू द इंजीनियरिंग कॉलेज. और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मोस्टली बॉयज ही जाते थे. ठीक है, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर गर्ल्स. ठीक है, तो पर वो एक ऐसी महिला थी जिनको उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और उनको इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलवाया. आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. कब किया ऐसा? जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया था. ठीक है, ओके. ओके, सो ऐसा कब किया था उनके पेरेंट्स ने? जब उन्होंने, we will read from here. Frontiers. What is the meaning of frontiers, beta? Frontiers means the line where one country join another or border. ठीक है, frontier क्या होता है? बाउंड्री लाइन या बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, जहां पे हमारी सीमा खत्म होती है और दूसरे देश की स्टार्ट होती है. दैट इज कॉल्ड अ बॉर्डर. इट कैन बी ऑफ स्टेट ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. ठीक है, ये हमारी सीमा होती है. दैट इज कॉल्ड अ फ्रंटियर. नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल. कल्पना चावला ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे के तौर पे कभी सपना भी नहीं लिया था जब वो करनाल में थी. करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में. वहाँ वो कह रही हैं कि उन्होंने कभी एक सपना भी नहीं सोचा था. क्या नहीं सोचा था? दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. कि वो कभी भी भारत से या अपने विश्व से की सीमा लांघ कर बाहर स्पेस में कभी जाएंगी भी क्या. ठीक है, सो कल्पना चावला नेवर एवर ड्रीम्ड ऑफ दिस थिंग दैट शी वुड एवर गो इनटू द स्पेस और शी वुड एवर क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ स्पेस. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर to attend engineering college after she graduated from Tagore School. Now let me tell you one thing, that when Kalpana Chawla was born and when she was getting educated, she was from a village. We all know that. And at that point of time, in the village, girls were only kept for working at home or taking care of the kids or working for the cattle. ठीक है, या तो उनसे घर का काम करवाते थे या बच्चों को की देखभाल कराते थे, खेत में काम करते थे, या फिर क्या होता था बेटा, गाय भैंसों का काम होता था. गर्ल्स को तो काम के लिए ही रखते थे. बट शी वॉज लकी इनफ, वो इतनी लकी थी कि उनके पेरेंट्स ने उनको कोऑपरेट किया, उनको सहयोग दिया, एंड देन
After completing her school from the Tagore School, she went to do the engineering to an engineering college. वो अपनी आगे की पढ़ाई करने कॉलेज में भी गई. और कौन सी? इंजीनियरिंग कॉलेज. इंजीनियरिंग तो बॉयज करते थे उस जमाने में जब वो पढ़ती थी. ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको कितना सपोर्ट किया आप सोच सकते हैं. दैट वॉज बियॉन्ड देयर लिमिट्स. ठीक है, पूरा सोशल जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्रॉस करके दे सपोर्टेड हर, एंड उसने उसका उनको बेनिफिट भी दिया. ठीक है, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरह के माहौल में भी इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. और इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया. येस और नो? उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉयज़ ही दिखते थे, गर्ल्स तो होती ही नहीं थी इतनी बेटा. बट स्टिल हर पेरेंट्स, दोज हु वर फ्रॉम द विलेज, दे हेल्प्ड हर टू गो and study engineering. ठीक है, and also they helped her to move abroad for her higher studies. ठीक है, so we will do till here in this chapter. Now let us summarize what we read in our part. We read about a newspaper cutting that was describing the unprecedented tragedy that happened in the space when Columbia space shuttle was returning back to Earth. ठीक है, एंड इट ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स. उसके टुकड़े टुकड़े हो गए जिसमें आग लग गई थी. एंड 7 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग कल्पना चावला, दे ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स. वो सब के सब क्या हुआ था बेटा? स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए थे, सबकी मृत्यु हो गई थी. कोई भी वर्ल्ड अपने अमेरिका पे लैंड नहीं कर पाया था. ऑलराइट, तो ये हमने पढ़ा था. और वो जो स्पेस शटल था वो 16 जनवरी 2003 को लॉन्च किया था स्पेस में, और 16 डेज तक वो कहाँ रहा था? उस ऑर्बिट में रहा था. और उन 16 डेज तक व्हाट डिड दे डू? दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स. हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स? 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए थे. एंड दे वर रिटर्निंग ऑन 1 February 2003, and at that point of time that tragedy happened and everybody lost their life. ठीक है, तो अब हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ रहे थे कि उसने कभी बचपन में सपना भी नहीं लिया था कि वो स्पेस में कभी जाएंगी भी क्या. ठीक है, बट शी वॉज लकी इनफ दैट हर पेरेंट्स एंड एवरीबडी एट होम सपोर्टेड हर टू गेट हर एजुकेशन ऑफ स्कूल completely, plus also she got admission in the engineering college. ठीक है बेटा. Now we will read in our next part what will she do next. ठीक है, अब आगे क्या होगा, उसने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, कैसे वो अमेरिका पहुंची, क्या उन्होंने अमेरिका में स्ट्रगल किया, कैसे वो एक एस्ट्रोनॉट बनी. ठीक है, एंड हाउ डिड शी फाइनली वेंट टू स्पेस. वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट पार्ट. सो until then everybody keep reading. Take care beta.